Hello, ninth class. Hope all of you are fine at your home. Welcome you all once again in your online classroom. Students, in the previous video of fundamental rights, I told you that in the next video, I will discuss about the writs and the fundamental duties. But students, writs actually I check it in your syllabus. It is not the part of your syllabus. Obviously, of course, I will discuss when the school will be reopened. I will discuss about the writs with you, and about the fundamental duties. There is no need of a separate video. I will send separate notes of the fundamental duties to you. Okay. So our last topic of this chapter is directive principles of state policy. Directive principles means these directive principles are guidelines provided by the Constitution which the government must keep in mind while framing its policies. तो देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं दे आर द गाइडलाइंस, दे आर द समथिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है टू द गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, that governments must keep in mind while making its policies. Means जब भी for the welfare of the people, when the government going to make its policies, then government should keep in mind the directive principles. So means these are the guidelines for the government while they are making its policy, then the government should keep in mind. Directive principles cover under Article 36 to 51 and they are contained in part 4th of the Constitution. Okay, so Article 36 to 51 deals with the directive principles and they are included in part 4th of our Constitution. Sources means from where we adopt directive principles. Directive principles को कहाँ से adopt किया हमने? First of all, we adopted directive principles from the Irish Constitution. जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, Irish Constitution, we adopted the idea of directive principles. गांधीयन प्रिंसिपल, जो महात्मा गांधी ने कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए थे, वहां से लिया हमने ये कंसेप्ट. थर्डली, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एमर्जिंग फ्रॉम फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन. फ्रेंच और अमेरिकन रेवोल्यूशन के जो मेन आइडल्स थे, जो वहां पर जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स थे, दैट द आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वी टेकन इट फ्रॉम देम. लास्ट इज द यूएन चार्टर. यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है, इट इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें कि प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस के इन द चार्टर. तो यूएन का जो चार्टर है वहाँ वो भी एक सोर्स है हमारा ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. तो दीज आर द मेनली 4 सोर्सेज: इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, गांधीयन प्रिंसिपल्स, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एमर्जिंग फ्रॉम फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन, and last is the UN Charter. These are the sources of the directive principles of state policy. Aim क्या है directive principles के? Firstly, to provide social, political and economic justice. इनके बारे में डिटेल में बात करूंगी मैं आगे कि किस वे से गवर्नमेंट जो है सोशल, पोलिटिकल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करेगी टू द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट और द कंट्री. टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी. देखो एलिमिनेट का मीन्स क्या होता है? टू रिमूव जो भी इनइक्वालिटी है, जो भी भेदभाव, असमानता है रिच और पुअर के बीच में, उसको रिमूव करना. टू एलिमिनेट इनइक्वालिटीज, टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको रेज अप करना, उनको गुड एजुकेशन, गुड फैसिलिटी, फूड, स्टैंडर्ड ऑफ फूड प्रोवाइड करके अवेलेबल करवा कर उनको टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. दीज आर द 3 मेन एम्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. Next is the classification of directive principles. Now students, we classify the directive principles on the various basis. First of all, principles promoting economic justice. तो जो principles economic justice को promote करते हैं, they are to provide adequate means of livelihood to all citizens. देखो, provide adequate means of livelihood. livelihood क्या होता है? Means like ऑक्यूपेशंस, मीन्स जिस बेस पर उनको काम, जो लोगों को काम काज मिल सके, लोगों को काम मिल सके, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, आजीविका के साधन, सोर्सेज ऑफ देयर इनकम.
लिवलीहुड मीन्स सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ पर्सन, तो वो मीन्स एडुकेट होने चाहिए ताकि एक जो सिटीजन है इंडिया का, जो उसकी बेसिक नीड है, एटलीस्ट ही और शी कैन फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड्स। तो इस वे से जो सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए, उनको जॉब्स प्रोवाइड करवाकर, उनको कोई लोन प्रोवाइड करवाकर, ताकि वो अपना कोई बिजनेस है उसको ओपन कर सके। तो economic justice, first point is to provide adequate means of livelihood to all citizens, and it is under Article 31A. Second is to prevent concentration of wealth in a few hands. कुछ एक हाथों में ये नहीं होना चाहिए कि some people become more and more richer. ये नहीं होना चाहिए कि जो wealth है वो only concentrate हो जाए into a few hands. कुछ एक लोगों के पास concentration हो wealth, उन्हीं के पास wealth हो. No, it should be distributed among the all citizens equally. To prevent means उस चीज को रोकना. To prevent concentration of wealth into a few hands. Third, to provide equal pay for equal work. अगर equal work है, both men and women do the same job and they have equal qualification, equal skill, then both men and women must be provided the equal pay. अगर सेम वर्क पर मैन और वुमेन काम कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल वर्क है, देन दे शुड बी प्रोवाइडेड इक्वल पे. ये नहीं है कि मैन को ज़्यादा हो वुमेन को कम हो पे, नो. तो प्रोवाइड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू बोथ मैन एंड वुमेन. नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ. एक्सप्लॉयटेशन अभी मैंने आपको राइट्स में करवाया था, फंडामेंटल राइट्स में. टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ. नेक्स्ट इज टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. देखो जो वर्कर्स होते हैं बेटा, उनका इंडस्ट्रीज में शेयर होता है, कुछ एक इंडस्ट्रीज में उनका शेयर होता है वर्कर्स का. तो उस पार्टिसिपेशन को कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, मीन्स दे कैन आल्सो टेक द डिसीजन. वर्कर्स हैव आल्सो राइट टू टेक द डिसीजंस इन देयर इंडस्ट्री. जहाँ पर वो काम करते हैं वहाँ पर कुछ एक उनको डिसीजन लेने का राइट होना चाहिए. तो दीज आर आवर इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज. अगर आपको आता है गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड देन प्रिंसिपल्स प्रमोटिंग गांधीयन वैल्यूज, देन योर पॉइंट्स विल बी सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू गांधीयन प्रिंसिपल्स, टू एस्टेब्लिश विलेज पंचायत. तो विलेजेस में पंचायत होनी चाहिए. टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज. कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या होता है? देखो जब फैमिली मेम्बर्स मिलकर काम करते हैं, लाइक पापड़ है, दरियाँ बना रहे हैं, वो लाइक अचार डालना, कैंडल्स मेकिंग वगैरह, जो ऐसे जो काम होते हैं, दैट फैमिली मेम्बर्स टुगेदर डू इट, दैट इज कॉल्ड द कॉटेज इंडस्ट्रीज. तो उस चीज़ को प्रमोट करना, दैट इज द गांधीयन प्रिंसिपल. टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स. तो 14 ईयर्स की एज तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करना. टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. जो वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, लाइक एससी हैं, बीसी हैं, ट्राइबल पीपल्स होते हैं, या फिर माइनॉरिटीज ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना. टू टेक स्टेप्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स. इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड ड्रिंक्स मीन्स जैसे कि पंजाब बेटा फेमस है हमारा, आपको पता ही है, फॉर द जो आजकल ड्रग्स के लिए. तो मीन्स उस चीज़ के ऊपर वर्क जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू वर्क ऑन इट, टू प्रिवेंट द यूथ फ्रॉम द टू बी नॉट द पार्ट ऑफ दिस ड्रग्स. तो मीन्स ड्रग्स को वो ना लें, ऐसे जो भी इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं जैसे वाइन वगैरह है, ठीक है. तो दिस इज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन टेक द स्टेप्स फॉर द प्रोहिबिशन to prevent the youth to take the drugs and drinks. So these are the Gandhian values. Next is the principles related to protection of environment and monuments. Environment and monuments. To safeguard the forest and wildlife of the country. Forest को safeguard करना है, wildlife को protect करना है. To protect monuments. Monuments में जो हमारी heritage sites होती हैं, लाइक कुतुब मीनार है, ताजमहल है, ऐसी और अदर्स और भी काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना
ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो हमारे नेशनल के इंपॉर्टेंस के लिए है। टू प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, दीज आर अंडर द प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड मोनूमेंट्स। फोर्थ इज द प्रिंसिपल्स अपहोल्डिंग लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस। तो लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस में क्या प्रिंसिपल्स हैं? टू क्रिएट ए लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम ऐसा हो, लीगल मीन्स जो हमारे जो जुडिशरी है, जो हमारे कोर्ट है, वो ऐसे होने चाहिए दैट प्रमोट्स जस्टिस, वो जस्टिस को प्रमोट करें ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, मीन्स सभी को इक्वलिटी हो, जस्टिस इक्वलिटी, जैसे हमारा था फंडामेंटल राइट था इक्वलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, राइट। तो उसी वे से है कि लीगल सिस्टम ऐसा होना चाहिए दैट प्रोवाइड प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। देखो फ्री लीगल एड का मीन्स क्या है? अगर देखो किसी पर्सन को अरेस्ट किया है पुलिस ने, सपोज अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अरेस्ट किया है और वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना एक वकील हायर कर सके, ठीक है, वो अपना एक वकील हायर करने की पोजीशन में नहीं है, इकोनॉमिकली ही इज वीक, उसके पास इतनी मनी नहीं है कि वो वकील की जो फीस है उसको पे कर सके। तो उस टाइम पर स्टेट गवर्नमेंट उसको अपना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक वकील प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और भी ऐसे मैटर्स होते हैं जहां पर फ्री लीगल एड मीन्स फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड की जाती है टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज टू हैव ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीन्स क्या हुआ कि सभी के लिए इक्वल कोड होना चाहिए, सिविल कोड। ये नहीं फॉर ऑल द सिटीजन्स, ये नहीं है कि अगर ट्रैफिक लाइट पर ओनली पुअर जो लोग हैं, जो गरीब पर्सन हैं, उन्हीं को रोका जाएगा। ट्रैफिक लाइट अगर रेड कलर की होती है तो वहां पर सभी को रुकना है, मीन सभी को रुकना है, चाहे वो कोई हाई अथॉरिटी पर्सन है, चाहे वो कोई स्मॉल अथॉरिटी पर्सन है, या फिर कोई कॉमन पर्सन है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा सभी सिटीजन्स के लिए। टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी मीन्स जो हमारे जो कोर्ट्स बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, मेनली चीफ मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके अंडर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो मीन्स एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो है उनका कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इन द जुडिशरी। टू टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। So these are the principles relating to the law, administration and justice. Next is the principles upholding international peace and security. जो international peace and security को uphold करेंगे। To promote international peace and security, इंटरनेशनल लेवल पर भी देखो हमें काम करना पड़ता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमें पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, दूसरे नेशंस हैं उनके साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो अच्छे होने चाहिए, इट मस्ट बी गुड। टू रिस्पेक्ट द इंटरनेशनल लॉज एंड ट्रीटीज, जो भी इंटरनेशनल लॉज हुए हैं, या फिर जो भी किसी के साथ कोई ट्रीटीज हुई हैं, किसी दूसरी कंट्री के साथ हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसे कुछ लीगल या फिर कुछ ऐसी कोई पॉलिसीज फ्रेम की हैं हमने विद अदर कंट्रीज, तो वी मस्ट रिस्पेक्ट दैट वन लॉज। टू सेटल द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स थ्रू आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन मीन्स आपस समझौते से, आपस में विचार विमर्श करके, ठीक है। अगर कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है बिटवीन अदर कंट्री एंड इंडिया, तो हम आपस अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे थ्रू आर्बिट्रेशन। तो दीज आर द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कि कहाँ तक हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, कहाँ तक इनके ऊपर वर्क हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल इक्वालिटी एंड जस्टिस। मोस्ट स्टेट्स टुडे प्रोवाइड फ्री प्राइमरी एजुकेशन। तो काफ़ी स्टेट्स जो हैं वो काफ़ी स्टेट्स में फ्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है बच्चों को। रिजर्वेशंस हैव बीन मेड इन पब्लिक सर्विस फॉर वीकर सेक्शंस। वीकर सेक्शंस के लिए आपको पता है गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन होती है, उनके लिए 20 और 30% की रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती है फॉर द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड। अनटचेबिलिटी में जो भी ऐसा लोअर कास्ट पीपल के साथ जो मिसबिहेव होता था वो टोटली अबॉलिश्ड हो चुका है अब। इकोनॉमिक वेलफेयर में क्या हुआ कि जो जमींदारी सिस्टम है हैज़ बीन अबॉलिश्ड। अब जमींदारी सिस्टम को तो खत्म कर दिया गया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीजेंट्स। लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस, लैंड रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रमोशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज प्रमोट हो रही हैं थ्रू वेरियस बोर्ड्स, काफ़ी बोर्ड्स इसके लिए सेटअप किए गए हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास टू एंश्योर इक्वल एंड जस्ट पेमेंट। देखो मिनिमम वेज एक्ट पास किया गया 1948 में, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट पास हुआ 1976 में, ताकि
इक्वल पे मिले फॉर द इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। सेवरल प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च, तो काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं, लाइक IRDP, RLEGP, जवाहर रोजगार योजना, SGSY, इनकी जो फुल फॉर्म है, इन दिस वीडियो एट लास्ट आई विल टेल यू अबाउट दिस फुल फॉर्म। तो ये कुछ एक ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वीकर सेक्शंस के लिए गवर्नमेंट्स ने प्रमोट किए हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लीगल मैटर्स। तो पंचायत सेटअप इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट पंचायत को सेटअप किया गया है। फ्री लीगल एड टू द पुअर, फ्री लीगल एड प्रोवाइड होती है पुअर जो भी हैं पुअर्स के लिए। जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव से। फॉरेन पॉलिसी में क्या है, इंडिया हैज़ पार्टिसिपेटेड इन ऑलमोस्ट ऑल UN पीस कीपिंग मिशंस, जो भी UN के पीस कीपिंग मिशंस हैं, इंडिया ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन ऑल दैट वर्क मिशंस। इंडिया सपोर्ट्स न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मीन्स इंडिया जो न्यूक्लियर वेपन्स की रेस में आगे नहीं है, न्यूक्लियर वेपन्स को वो प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। इंडिया ऑलवेज एनकरेज द इंटरनेशनल सेटलमेंट थ्रू आर्बिट्रेशन, तो हमेशा ही इंडिया एनकरेज करता है कि जो भी इंटरनेशनल सेटलमेंट्स हैं इट मस्ट बी डन थ्रू आर्बिट्रेशन, आपसे में समझौते से जो भी है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, जो भी टू कंट्रीज के बीच में कोई प्रॉब्लम अरेज हो रही है। लास्ट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड हेरिटेज। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ सेवरल इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम्स, तो काफ़ी इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोग्राम्स हैं, इंडिया उनका पार्ट है, लाइक UNEP, SACEP, ICIMOD। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड सेवरल पॉलिसीज टू कंजर्व फ्लोरा एंड फौना, तो फ्लोरा और फौना जो हमारे फॉरेस्ट हैं या फिर प्लांट्स हैं एंड वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी पॉलिसीज अडॉप्ट की हैं, लाइक नेशनल रिवर पॉलिसी इन 1988, नेशनल एनवायरमेंट पॉलिसी 2006। इंडिया हैज़ अ फॉरेस्ट पॉलिसी, इंडिया की एक फर्स्ट पॉलिसी है इन 1894 से, उसको रिवाइज किया गया 1952 में एंड देन लास्ट इन द 1988। द ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ द नेशन। तो हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू प्रोटेक्ट द कल्चर हेरिटेज साइट्स ऑफ द नेशन। तो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। Next is what is the differences between fundamental rights and directive principles of state policy? This is the most important question. देखो जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं they are contained in part 4th and fundamental rights are contained in part 3rd of the constitution. Directive principles are non-justiciable. Non-justiciable means students we cannot go to the court. अगर देखो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हमें इस वे से जो ऊपर की पॉलिसीज प्रिंसिपल्स जो बताए गए हैं अभी आपको, उस वे से अगर वो अपनी पॉलिसीज फ्रेम नहीं करती हैं we cannot go to the court, okay, but fundamental rights are justiciable. In the case of fundamental rights we can go to the court. एम क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, और यहाँ पर एम क्या है? इट इज एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दे इंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड दे इंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो दीज आर द मेन डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। लास्ट इज आवर क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? नो लीगल बैकिंग, सो ओनली अ वंडरफुल फिलोसफी। देखो कोई भी लीगल बैकिंग नहीं है, वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट, हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं इन केस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सो ये ओनली एक वंडरफुल फिलोसफी है। डिपेंड्स ऑन द रूलर्स एज टू बी इफेक्टिव, तो ये स्टेट जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस वे से वो हमें जो ये प्रिंसिपल्स यहाँ पर मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की, किस वे से जो पॉलिसीज है अपने उनके अकॉर्डिंगली वो फ्रेम करती हैं, या फिर लोगों के वेलफेयर के लिए किस वे से वो वर्क करती हैं। तो इट इज डिपेंड ऑन द रूलर्स कि कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, किस वे से वो वर्क कर रही है। इन एडुकेटेड रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इंडिया हैज़ अ वास्ट पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन बहुत है बट जो रिसोर्सेज जो हैं वो काफ़ी कम है। तो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। तो दीज आर द क्रिटिसिज्म। लास्ट ईयर स्टूडेंट्स फुल फॉर्म, IRDP की फुल फॉर्म क्या है? द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम।
SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, SSEP साउथ एशियन कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ICIMOD इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, ASI the Archaeological Survey of India. Students, this is all about today. Our chapter is completed, the directive principle of state policy. If you want the notes of this chapter, you can get it from the previous 9th Head 2 class, which is now 10th Head 2. You can get these notes. Some of the students may have these notes with them. You can have a contact with that one students. Okay, have a nice day. Goodbye all of you.